Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our next topic, Introduction to IS 456-2000 Part B. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that introduction about design of our structure. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन दी स्ट्रक्चर. तो विच टाइप ऑफ लोड एक्ट ऑन अ स्ट्रक्चर, जैसे कि कौन कौन से लोड एक्ट हो गए. सो वर्टिकल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड, लाइक ग्रेविटी लोड, डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, wind load, earthquake load, moving load. So there are different type of load acting on the structure. Then after we saw different type of material used in structure and their unit weight. Then we saw how to design wind load. Then different type of method used to design earthquake loads, like seismic coefficient method, response spectrum method. Then different type of load combination, dead load plus live load, wind load, earthquake load. Then design strength and stiffness. So what is strength? Strength is the property of element or a structure to resist force, and stiffness is defined as property of element to resist deformation. So it is strength and stiffness. Then we saw different type of design process, analysis, design and detailing. And now our next topic is introduction to IS 456-2000. So first of all, there are different content in part B. So first of all, limit state. In a limit state, principal, limit state of collapse, assumption made in theory, limit state collapse and fracture. Then limit state of serviceability, limit state of shear. Now second, characteristic strength, characteristic load, design strength, design load, partial safety factor, grade of concrete, grade of steel, importance of use reinforcement in concrete, stress strain curve for a concrete as well as stress strain curve for a steel, and important some definition and example. So first of all we see limit state. What is limit state? So in the limit state method of design, the structure is designed to carry all the applied loads safely during its life and satisfy the serviceability requirements such as a deflection, cracking, etc. तो फर्स्ट ऑफ लिमिट स्टेट क्या है? तो इस मेथड में क्या आएगा कि हमें स्ट्रक्चर को ऐसा डिज़ाइन करना है जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, वो सेफली उसे बेयर करेगा ड्यूरिंग द इट्स थ्रू आउट सर्विस. जो स्ट्रक्चर की लाइफ डिज़ाइन की गई है, तो थ्रू आउट लाइफ वो सर्विसेबल होना चाहिए और ऑल द लोड एक्ट हो रहा है उससे वो बेयर करना चाहिए. एंड जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट है सर्विसेबल रिक्वायरमेंट, जैसे कि डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग है, वो भी सफिशिएंट फुलफिल होना चाहिए. सो इट इज़ द लिमिट स्टेट मेथड. नाउ एज पर IS 456-2000, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर अकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट. ठीक है, तो क्या कहा गया है 456-2000 में इंडियन स्टैंडर्ड? सो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायर्ड बिफोर फेलियर अकर. ठीक है, सो फेलियर को नहीं होना, फेलियर को स्ट्रक्चर में जो फेलियर है वो नहीं होने देगा. ठीक है, ड्यूरिंग इट्स सर्विसेबिलिटी. सो इट इज़ कॉल्ड लिमिट स्टेट. नाउ प्रिंसिपल लिमिट स्टेट्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट के टू टाइप्स हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. So in a limit state of collapse which deals with the strength and stability of structure under the maximum overload it is expected to carry, and no part or a whole of the structure should fall apart under any combination of overload. ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या होगा, क्या डील करेगा, जो किससे डील करेगा? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अंडर द मैक्सिमम ओवरलोड. ठीक है,
किसे डील करेगा, जो स्ट्रेंथ है एंड जो स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर की, वो जो मैक्सिमम ओवरलोड आएगा उसको वो क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। एंड नो पार्ट और अ होल ऑफ द स्ट्रक्चर शुड फॉल अपार्ट अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरलोड। तो कौन कौन से है, जैसे कि फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर एंड टॉर्सन। नाउ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, सो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एक्सेट्रा शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर अ सर्विस लोड कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन से है, लाइक डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। So limit state of collapse, the resistance to bending, shear, torsion and axial load at every section shall not be less than the appropriate value at the section produced by the probable most unfavorable combination of load on structure using appropriate partial safety factor. So it is limit state of collapse. ये आप लोगों को दिया गया है IS 456 पेज नंबर 67 क्लोज 35.2। नाउ सम अजम्पशन मेड इन थियरी ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन अ फ्लेक्सर, ठीक है। ये भी आप लोगों को दिया गया है IS 456 पेज नंबर 69। आप लोगों को ये रिफ़र करना है, IS कोड, ठीक है, पढ़ना है, लिखना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों को एक्सटर्नल एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम में अलाउ है IS 456, ठीक है, तो आप प्रिफेयर कर सकते हो। सो असम्पशन मेड इन थियरी ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर, ठीक है। सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन अ फ्रैक्चर असम्पशन, द प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। थ्रू आउट जो क्रॉस सेक्शन है प्लेन का वो क्या होना चाहिए, रिमेन सेम ड्यूरिंग after bending and before bending. Now the maximum strain in a concrete, the maximum strain in the concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending, ठीक है। जो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन होगा तो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर के लिए कितना लेना है, 0.0035, ठीक है। And the relation between the compressive stress distribution in concrete and the strain in a concrete may be assumed to be rectangle, trapezoidal, parabola or any other shape which result in prediction of strength in sustainable agreement with the result of test, ठीक है। जो रिलेशन है कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड इन द स्ट्रेन इन अ कंक्रीट में भी एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, कैसे लेना है, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, पैराबोला or any other shape which result in prediction of strain in substantial agreement with the result of test, and the tensile strain of the concrete is ignore, ठीक है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस को क्या करना है, इग्नोर करना है। सो द स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट आर डिराइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज, ठीक है। अब हमें जो रेनफोर्समेंट उसमें डालना है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, कि विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें पता चलेगा। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन Fy अपन 1.15 ES प्लस 0.002। ये आप लोगों को IS कोड में दिया गया है 456/2000 पेज नंबर 75। So in this way some principle of limit state, ठीक है, some assumption in a limit state of collapse. Now limit state of serviceability. So the serviceability limit state deal with conditions such as a deflection, cracking under a service load during under a given environment, fire resistance and fatigue etc, ठीक है। तो सर्विसेबल लिमिट किससे डील करेंगे, सम कंडीशन आर देयर। तो फर्स्ट इज कौन कौन सी कंडीशन है, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग अंडर अ सर्विस लोड, ड्यूरेबिलिटी अंडर अ गिवन एनवायरमेंट एंड फायर रेजिस्टेंस एंड फैटिग। सो फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन। तो एज पर IS 456/2000 पेज नंबर क्या है 37, क्लोज क्या है 23:1 फॉर एनी फ्लेक्सरल मेंबर L/D रेशियो, लेंथ एंड डेप्थ रेशियो
शुड नॉट एग्जिस्ट द वैल्यू गिवन बिलो। ठीक है, आप लोगों को ये IS कोड में दिया गया है। ठीक है, तो हमें लेंथ बाय डेप्थ रेशियो कैसे कंसिडर करना है वो दिया गया है। सो बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर अ स्पान अप टू 10 मीटर। ठीक है, सो कैंटिलीवर होगा तो क्या लेना है, 7th सिंपली सपोर्टेड 20 एंड कंटिन्यूस 26 लेंथ बाय D रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्रैकिंग। सो एज पर IS 456 2000 पेज नंबर 46 क्लोज 26.3.3 फॉर एनी फ्लेक्सुरल मेंबर रेनफोर्समेंट स्पेसिंग शुड नॉट बी एग्जिस्ट द वैल्यू गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें स्पेसिंग कैसे गिवन करना है वो दिया गया है। सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ बीम द स्पेसिंग शुड नॉट एग्जिस्ट द वैल्यूज गिवन इन IS 456 2000 टेबल 15 पेज नंबर 46। तो बीम के लिए आप IS कोड प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ फॉर अ स्लैब स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड, सो मेन रेनफोर्समेंट 3 इंटू डायामीटर whichever is smaller than distribution steel 5 into diameter whichever is smaller। 300 reinforcement क्या है, मेन reinforcement 300 mm and distribution steel 450 mm spacing। now limit state for shear, so the shear stress produced in the member should be within permissible limit, so it is as per IS 456 2000 page number 72 close 40.2.3। now for beams tau V less than tau C maximum। ठीक है, so where tau V is equal to nominal shear stress VU upon B into D and tau C equal to values are given in IS 456 table 20। now for a slab tau V less than tau C maximum divided by 2। now next is some characteristic strength। so characteristic strength means that value of strength of the material below which not more than 5% of the test result are accepted to fall। ठीक है, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ वैल्यू है बिलो विच आर नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड। जो टेस्ट रिजल्ट में जो वैल्यू मटेरियल की वैल्यू है उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए, बिलो होना चाहिए नहीं। सो लेट कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट FCK इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm²। इफ़ 100 नंबर ऑफ क्यूब्स मेड आउट ऑफ दिस कॉन्क्रीट आर टेस्टेड, कि सपोज हमें किसी भी कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज उसकी FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, 25 न्यूटन पर mm²। तो हमें क्या करना है कि 100 नंबर ऑफ क्यूब आर मेड आउट ऑफ दिस कॉन्क्रीट आर टेस्टेड, बराबर कि हमें क्यूब बनाना है कितने नंबर, 100 नंबर, और उसका हमें टेस्ट करना है। सो मोर देन 95% क्यूब शुड बी गिवन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अबाउट 25 न्यूटन mm²। ठीक है, कि सपोज 100 में से जो 95 क्यूब है वो उनकी कितनी आई ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई कंक्रीट की, 25 न्यूटन mm²। एंड 5 क्यूब में है वो स्ट्रेंथ बिलो 25 न्यूटन पर mm²। जो 5 क्यूब है उसकी क्या आई कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन mm से कम आई। ठीक है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, जो होल जो कंक्रीट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, 25 न्यूटन पर mm²। सो FCK वेयर FCK इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, Fy इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। नाउ द स्ट्रेंथ that one can safely assume for a material concrete and steel is termed as a characteristic strength। ठीक है, so this is to be based on the statistical analysis of a test result below which not more than 5% of test result are expected। so it is assumed that variation of test result follow normal distribution curve। so as the design strength should be less than mean strength, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू
mean strength minus K into S. So where characteristic is denoted by F is equal to Fm minus Ks, where K equal to 1.64 and S is equal to standard deviation. So this is the ग्राफ ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक. सो एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक्स एक्सिस पे स्ट्रेंथ एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड characteristic strength of the concrete. So for a concrete, characteristic strength is compressive strength of 150 mm cube at 28 days in Newton per mm square, below which are not more than 5% cube are give the result. So concrete grade are specified based on his strength. So for a steel, IS 456 permit use the minimum yield strength or 0.2% proof strength as the characteristic strength. So steel grade are specified based on this strength. So in this way we can find characteristic of the concrete.